کے کلام میں سے جس پیغام کو ہم سنیں گے، خدا کے کلام کو کیسے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے چند لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں پتہ ہے خدا کے کلام کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن عزیزو ضرور ہے کہ آج شاید ہم ماضی میں جس طرح کلام کو پڑھتے آ رہے ہیں، آج خدا ہمیں نئی ڈائریکشن دے گا کہ ہم نے خدا کے کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے نئے عہد نامہ میں سے دوسرا تimotheus کا خط۔ جن کے پاس اپنی بائبل ہے وہ بائبل میں سے دوسرا تimotheus کا خط نکالیے۔ اگر کسی کے موبائل میں بائبل ہے تو وہ موبائل میں سے نکال سکتا ہے، کھلی اجازت ہے۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ اپنی بائبل کھول لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے دل کھول لیں۔ دوسرا تimotheus تیسرا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں عزیزو لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں عزیزو 16ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ الہام کا مطلب ہے کہ وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلی اور اس کو رقم کر لیا گیا۔ الہام خدا کے منہ کی بات، یہ کسی انسان کی بات نہیں بلکہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ اور صحائف کا مطلب یہ ہے، ہم بائبل مقدس میں مختلف کتابوں کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹوٹل 66 کتابیں پروٹیسٹنٹ بائبل میں ہیں، تو انہیں ہم صحیفے لے سکتے ہیں۔ تو ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ پچھلے دنوں میں آج سے 4-5 دن پہلے میں ایک مارکیٹ میں ایک کیمرہ لینے کے لیے گیا، کیونکہ میرا لیپ ٹاپ کا کیمرہ خراب ہو گیا اور مجھے ضرورت تھی، تو میں کیمرہ لینے کے لیے مارکیٹ میں گیا۔ اور جس دکان میں میں وہ کیمرہ لینے کے لیے گیا، میں نے اس بھائی کو کہا کہ مجھے ایک کیمرہ چاہیے، ایکسٹرنل کیمرہ۔ تو اس نے پوچھا مجھے آپ تھوڑی سی اپنی وہ ضرورت بتا دیں، کس مقصد کے لیے کیمرہ آپ نے لینا ہے تاکہ میں اس لیول کا کیمرہ آپ کو دے دوں۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی جی میں پادری ہوں اور ہمارے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں آن لائن، تو اس کے لیے مجھے چاہیے، میرے لیپ ٹاپ کا کیمرہ خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا آپ پادری ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتا ہے کہ آپ کا تو کلام بدل چکا ہے۔ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے، لیکن آپ سے میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج عزیزو آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کل کو آپ کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اس سے کہا بھائی آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ نے شاید کسی سے سن لیا کہ بھائی مسیحیوں کی جو کتاب ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے کب، کہاں، کس نے اور کیوں بائبل میں تبدیلی کی؟ کہاں ہے تبدیلی؟ کس نے کی تبدیلی؟ کب کی تبدیلی؟ کیوں کی تبدیلی؟ اس بات کا مجھے اگر آپ جواب دے دیں تو شاید مجھے بھی پتا چل جائے بائبل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو بائبل مقدس ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ ہم اس قوم میں، اس ملک میں ہم صرف اس کا 4 سے 5% ہیں۔ باقی سب لوگ وہ ہیں جو یہ اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن عزیزو یہ وہ کتاب ہے جو تبدیل نہیں ہوئی، لیکن وہ کتاب ہے جو دوسروں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو زندہ خدا کی کتاب ہے۔ دنیا کے خدا مرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو زندہ خدا کی کتاب ہے۔ اور اگر ہمارا خدا زندہ ہے تو یہ کلام بھی، ہاللیلویہ، یہ کلام بھی زندہ ہے۔ تو جو زندہ ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ کلام کیا دیتا ہے؟ زندگی۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ کلام زندگی دینے والا کلام ہے، لکھا ہے کہ ہر ایک
जिंदगी देने वाला है, तो फिर हमें इसे पढ़ना किस तरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आज मैं आपके सामने 3 तरह के लोगों को लाऊंगा जो कि कलाम मुकद्दस को किस तरह से पढ़ते हैं उसको, ताकि बेहतर तौर पर समझ सके। पहली वो कैटेगरी है, पहली वो किस्म है लोगों की हमारी मसीही कौम में जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं है, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ते। अगर मैं कहूँ साल में 1 दफा, तो वो भी नहीं। वो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कभी उन्होंने कलाम मुकद्दस को पढ़ा ही नहीं है, सुन लेते हैं, पढ़ते नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कलाम मुकद्दस को जरूर पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए। तो दूसरी कैटेगरी वो रेगुलरली पढ़ते होंगे, शायद हो सकता है कि उन्होंने कहीं किसी को जवाब देना है तो उसके लिए बाइबल में से हवाला जात निकालते हो, पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन। तीसरी कैटेगरी वो है जो बाइबल मुकद्दस को रोज पढ़ते हैं, लेकिन ड्यूटी समझकर। क्या समझकर? ड्यूटी समझकर। शायद वो इसलिए पढ़ते हैं कि लोग देखें कि हम कितने अच्छे मसीही हैं, या मेरे घर वाले देखें कि हम कितने अच्छे मसीही हैं, या हमारे हाथों में बाइबल होगी तो लोग हमें पढ़ाई में खिलाएंगे। ये ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं, आप शायद जानते होंगे अपने इर्द गिर्द किसी को। जब मैं तीसरी कैटेगरी की बात करता हूं तो मैं याद करता हूं कि एक वक्त था कि मैं उनमें से था। तीसरी कैटेगरी वाले लोग कौन से थे? वो तीसरी कैटेगरी वाले लोग जो ड्यूटी समझकर पढ़ते हैं। उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि हमारे घर में बचपन में, मेरी वालदा मेरे साथ मौजूद है, तो हमारे घर में एक कानून था बचपन में कि स्कूल जाने से पहले बाइबल मुकद्दस पढ़कर जाओ। स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर जाना है, हवाला एक हो या चाहे पूरा बाप हो, जितना भी टाइम दिया जा सके। सो रेगुलरली स्कूल जाने से पहले बाइबल पढ़ने का हमारे घर में असूल था, और अगर किसी दिन बाइबल ना पढ़ी जाती हमारी पिटाई भी होती थी, अगर हम बाइबल किसी दिन भूल जाते पढ़ना। तो तीसरी कैटेगरी में मैं समझता हूँ कि मैं शामिल था कि हम बाइबल को ड्यूटी समझकर पढ़ते थे, क्योंकि रूल घर में असूल है, पढ़ना है, दिखाने के लिए शायद कि अभी अब्बू देख ले, हाँ भी बाइबल पढ़ कर गए हैं हमारे बच्चे। ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस को एक बार मुकम्मल हमने शुरू से आखिर तक पढ़ा हुआ है। कितने लोग हैं आप में से जो ये इसके लिए हाथ खड़ा करेंगे? हाँ जी, कोई भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ, तो मेरी बेगम भी उनमें शामिल हो गई। अच्छा, और कोई? अच्छा, और कोई नहीं है। सो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप लोग कहेंगे कि हमने ना जी एक बात तो पढ़ी हुई है कम, लेकिन कोई बात नहीं, जो मैं आगे बातें करने वाला हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई आप किसी से मिले हो तो उसने कहा होगा जी मैंने 2 दफा बाइबल पूरी पढ़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शख्स से मिला जिसने मुझे बताया जी मैंने 5 दफा बाइबल पूरी पढ़ी हुई है शुरू से आखिर तक। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मुझसे आकर कोई ये कहे कि मैंने बाइबल मुकद्दस को 100 दफा पढ़ा हुआ है, तो कैसी अजीब बात होगी अगर 100 दफा किसी ने कहा कि मैंने पढ़ा हुआ है। बात मकसद का है, जो बात हमने सीखी वो ये है कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बाइबल पढ़ने के बाद क्या तब्दीली रूनुमा हुई है, ये सबसे अहम तरीन पॉइंट होना चाहिए हमारी जिंदगी का। हम बाइबल मुकद्दस को ड्यूटी समझकर ना पढ़ें, हम बाइबल मुकद्दस को जो है वो इंफॉर्मेशन या इल्म हासिल करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस को इसलिए पढ़ें कि हम तब्दील हो जाएं। आमीन। छोटी सी मिसालें, 2 चंद एक मिसालें, मेरी तरफ ध्यान रखिए, लाइट हो सकता है फिर बंद हो जाए, टेंशन नहीं ले, इधर मेरी तरफ ध्यान रखिए। बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से आज हम सीख रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखनी है उसके लिए मैं 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली मिसाल बिल्कुल सादा सी, छोटी सी मिसाल है, कोई पेचीदगी नहीं होगी इसमें। पहली मिसाल, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि झूठ बोलना है कि थोड़ा बोलना,
क्या करना? झूठ थोड़ा बोलना कि क्या करना? नहीं बोलना। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई हमारे दरमियान में भी मौजूद हो सकता है, या हो सकता है आप किसी को जानते हो जो हर दूसरी बात के बाद झूठ बोलता है। तो अगर वो बाइबल मुकद्दस को 200 दफा भी पढ़ चुका है और उसकी जिंदगी में ये तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, तो उसके बाइबल पढ़ने का उसको क्या फायदा? कोई फायदा है? दूसरी मिसाल, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि तू कसम ना खाना, तू कसम ना खाना। लेकिन हो सकता है हमारे दरमियान में ऐसे कुछ लोग मौजूद हो, या आप किसी को जानते हो जो हर दूसरी बात के बाद अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, ये कहते हुए नजर आते हैं। तो अगर उन्होंने 10 दफा भी बाइबल पढ़ी है, 1000 दफा भी बाइबल पढ़ी है, लेकिन उनकी जिंदगी में ये तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, इसका मतलब बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। मैं उन 3 कैटेगरीज में आपको लेकर जाना चाहता हूँ वापस। 3 किस्म के जो लोग हमने सीखे थे। पहली किस्म क्या थी? जो बाइबल सारे, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो सारे बोलिएगा, वो पहली किस्म के लोग कौन से हैं? जो बाइबल नहीं पढ़ते। दूसरे वो जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। तीसरे जो ड्यूटी समझकर, जिम्मेदारी, रेगुलर रूटीन समझकर बाइबल को पढ़ रहे या दिखाने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन तीनों में सबसे कम दर्जे का शख्स कौन है, तो आप अपने ज़हनों में जवाब सोच चुके होंगे। मैं सिर्फ 1 2 3 बोलूंगा, आपने जवाब देना है। इनमें तीनों में से कम दर्जे का शख्स कौन है? वो जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो जो बाइबल भाइयों नहीं पढ़ते। लेकिन सच ये है कि तीनों कैटेगरीज के लोग इक्वल लेवल पर, तीनों कैटेगरीज के लोग एक ही सतह पर, इनमें तीनों में कोई फर्क नहीं है। पढ़ना या पढ़ लेना कोई उनके लिए फायदामंद नहीं है। फायदेमंद उसके लिए है जिसने बाइबल को पढ़ा और उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। उसने सुना कि झूठ नहीं बोलना, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत मिसाल रखूंगा ज़बूर की किताब में से, बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब, उसका 119 बाब निकालिए और उसकी 104 आयत कोई भी दिलेरी के साथ पढ़िए। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है। अब कवानीन क्या है? कवानीन कहाँ लिखे हुए? बाइबल में। तो दाऊद खुदा का बंदा बाइबल मुकद्दस को रेफरेंस करता है और फरमाता है कि तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है। फहम का मतलब है अकल आ जाना, फहम का मतलब है दिमाग खुल जाना, जो पता नहीं था उसका पता चल जाना। फहम आ गया, अकल आ गई, दानिशमंद हो गया, दिमाग रोशन हो गया। ये है कलाम को पढ़ने का तरीका। आगे क्या लिखा है? इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। इसीलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। ये तब्दीली आ गई। हालेलुया। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है और इसलिए तेरे कवानीन को पढ़ने से अकल आ गई है मुझे, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। सो अगर खुदा के कलाम, अगर खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद तब्दीली नहीं है तो कलाम को पढ़ने का तरीका चेंज कर दीजिए। आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ने का तरीका तब्दील कर दीजिए, क्योंकि खुदा हमसे ये नहीं चाहता कि हम 100 दफा बाइबल पढ़ रहे हो। खुदा ये चाहता है कि खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद हम तब्दील हो रहे हैं। आमीन। खुदा का बंदा
है, खुदा का कलाम जिंदगी देता है और वो जिंदगी हमें तब्दील करती है। एक मुर्दे में और जिंदे में यही फर्क है। अगर कोई शख्स खुदा के कलाम को दिल में नहीं बसाता तो गुनाह करते रहेगा। छोटी सी मिसाल, आपने खुदा के कलाम को पढ़ा, आप आजमाइश में पढ़ गए, आपके जहन में वो आयत याद आ रही है कि तू कसम ना खाना, तो आप जरूर दिल में वो फौरन बटन बच जाएगा, ओ ना 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 कसम नहीं खानी। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा करता हो। अगर आपने कलाम को पढ़ा और आप तब्दील हुए तो आप उसको कह रहे होंगे कि भाई ये गलत बात, खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता, हमने कसम नहीं खानी। सो खुदा का कलाम उसका सही लिखा है। दोबारा से आइए दूसरे तिमुथियुस 16 का तीसरे बरस की 16वीं आयत में लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा की इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाम और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद भी है। तरबियत के लिए फ़ायदेमंद भी है, तालीम भी है, इसमें इस्लाह भी है, इसमें रास्तबाजी भी है, इसमें तरबियत भी है। तो अगर खुदा के कलाम जो खुदा का जो लिखा है कि इल्हाम है, जो सहीफे हैं, ये तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है, तो अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे तो हमारे लिए हमें कलाम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा, जब हम हकीकी तौर पर खुदा के कलाम को इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हम तब्दील हों, तो फिर खुदा का कलाम 17वीं आयत में कहता है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। क्या बने? कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए। ऐसे जैसे एक फौजी तैयार होता है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ, उसके बूट भी पहने हुए हैं, पिस्तौल भी, उसकी बंदूक भी तैयार है, गोलियां लोडेड है, उसने अपनी यूनिफॉर्म टाइट रखी हुई है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, तो तैयार है। अगर हमला अभी हो जाए तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। खुदा हमसे ये चाहता है, वी हैव टू बी रेडी एज अ सोल्जर। हमें एक सिपाही है, फौजी की तरह तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम गुनाह करते रहते, तो ये खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उस कैटेगरी में आए जो कलाम को पढ़ने से अपनी जिंदगियों में तब्दीली का तजुर्बा हासिल करने वाले। अगर हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो मैं इल्तिमास करता हूँ आप सभी से, और बल्कि उन लोगों से भी जिनको आप जाकर आज शायद ये बता रहे हो कि खुदा के कलाम को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। खुदा आपको बहुत ज़्यादा